Hello people, good evening. This is Shruti Dwivedi and welcome to the Shruti Dwivedi show. It's summers and you all know that I have this horrible problem in summers. I suddenly start fainting. So I've started eating a little after many years. Instagram says hang on a little, we are telling many more people to join tonight. I have a special guest in tonight. I just have one audience at the moment. And I'm waiting for many people to join. Jay Pratan Gua joined. Hello. Cox. I don't know what language you speak, but it sounds good to me. Faiz Alam says hello. Hello. I hope the month of Ramadan Kareem is doing well for you. I am good. Thank you for asking. And I hope you're enjoying the little Instagram lives I've been doing. Mohabos joins. That's my daughter. Then Faiz Alam says he wants to be live in my video, not right now, but I will someday, God willing, take you live. I'm waiting for a special guest tonight, Saurabh Bharadwaj. I think one of the youngest leaders, one of the youngest. Jay Pratan Gua says, answer please. I don't even know what language you spoke, but I told you, I don't know what it was. If you write in Hindi, English, I would be able to read it and interpret. And I'm waiting for Saurabh to join, and in a little bit Saurabh Bharadwaj will join us. So yes, we're waiting for Saurabh to join. I'm your big fan, ma'am. Thank you so much, Faiz, for watching. Thank you for being a fan. God has been very kind. And so now finally Saurabh Bharadwaj, the much awaited guest tonight, is joining us. He has had a good political career with the ruling party of Delhi. He is the MLA from my local place where I live, GK2, and GK1, GK2, I guess, yeah. And Saurabh, I met him once at News 24. It was great meeting him. We are waiting for Saurabh Bharadwaj to join us, and the crowd to pick up, the need to build up, that we are waiting. Saurabh has had a tenure of being a cabinet minister under the Aam Aadmi Party around 2014, when from 28th December to 2013 to January 2014. He is an engineer by his degree, and we are waiting for him to join us. He has won this time as well, and I voted for him. So we're waiting for Saurabh Bharadwaj to join us. 28th June 2017 was another, he won the MLA of the Year by Dainik Prayukti. So we've had Saurabh Bharadwaj joining us. I'm adding Saurabh Bharadwaj right now. And let us see how it goes. Hi. Welcome, Saurabh. Hi, welcome to the show. I think I have become the debut queen for Insta Live. Everybody does a debut with me, and I think this is your Insta Live. Is it? Yes, I think this is my first Insta Live in my life. Yeah. I'm not a very regular person on Insta. I do Facebook, Twitter, but I'm planning to start it, more often. Yeah, you should do it more often. It's a very good platform. And I know the amount of following you have on Twitter, and I've seen, and in real life, you won the elections for I voted for you. Remember, I met you at News 24, and I said you are winning. Just I think a day before the Constitution Club. बिल्कुल. याद आया? Right, हम News 24 पे मिले हैं. I think Constitution Club पे मिले हैं. Yes. And that was when I have people following me right away, which is not a good time to call me. So the call is disturbing me at the moment. Yes, you are audible. थोड़ा ब्रेक हो रहा है वॉइस, बट ऑडिबल है. हाँ, वो बीच में एक आध कॉल आ जा रहा है ना, तो उससे गड़बड़ हो जा रही है. नमस्कार दोनों को देख रहे हैं. और सौरभ के बारे में बताना चाहूंगी कि इंजीनियर बाय प्रोफेशन है और यहाँ से जीते हुए हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार आपके लिए. और हम पॉलिटिकल ज्यादा बात नहीं करेंगे सौरभ, क्योंकि वो तो एंकर्स का काम होता है. मैं जानना चाहती हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तो क्या शुरू से ही इनका इंटेंशन था
पॉलिटिक्स ज्वाइन करना या फिर कुछ और? सर वीडियो इंटरप्ट हो रही है। सौरभ आपको सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी सौरभ? एम आई विजिबल? बीच में थोड़ा सा बीच में आपका थोड़ा हाँ, वो कनेक्शन बीच होता में था। कोई कोई ऑडियंस कॉल कर ले रही है ना, अभी डायल कर दे रही है मुझे फोन पे, तो उससे मुझे मुश्किल हो जा रही है। अभी आपको ओके। सुनाई दे रहा है? अभी हाँ हाँ, क्लियर है? मेरे को सुन रही है। देखिए, ग्रेटर कैलाश ओवरऑल एक अच्छी समृद्ध और पढ़े लिखे लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यस। इसकी ज़रूरतें जो होती हैं वो काफ़ी अलग हैं। तो खास तौर पे जब ये पूरा कोरोना का पूरा मामला चल रहा है, ट्रू। तो टचवुड अभी तक जो है जीके के अंदर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। छोटे मोटे केसेस किसी किसी जगह पे आए हैं, बट कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा कोरोना जो है वो बढ़ रहा हो। एंड ग्रेटर कैलाश के अंदर एक अलग चीज़ ये भी है कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारी कॉलेज, GK1 लीजिए, GK2 लीजिए, पंचशील, शेख सराय, ज्यादातर सीनियर सिटीजन रहते हैं, ज्यादातर ट्रू। ओल्ड कपल रहते हैं जिनके बच्चे जो हैं बेंगलोर में, ऑस्ट्रेलिया में, US में पढ़ रहे हैं ट्रू। या जॉब कर रहे हैं, वहां सेटल हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो एवरेज एज ग्रेटर कैलाश की बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्यादा है। तो इसलिए ग्रेटर कैलाश थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि हमारे जी। यहाँ बुजुर्ग ज्यादा है। बट टचवुड अभी तक RWS बहुत अच्छा, मोटे तौर पे कुछ जगह गड़बड़ भी कर रहे हैं, बट मोटे तौर पे RWS के लोग भी जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि सेल्फ मैनेज कर रहे हैं चीजों को, ट्रू। आने जाने ट्रू। के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। और लोग भी मुझे लगता है या। कि इतने, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना दिल खोल के जो है दान देंगे। मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब कभी हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी किसी को कहने के लिए कि हमें कुछ लोगों के लिए किसी की जरूरत है। रोज मतलब फोन आ जाते हैं कि हमसे 500 किलो आटा ले लो, हमसे गेहूं ले लो, अच्छा कुछ नहीं तो बिस्किट का पैकेट्स ले लो। हाउ नाइस। आज जैसे देखिए, गरीब लोगों के अंदर बांटने के लिए किसी ने हमें फ्लेवर्ड कर्ड कर्ड दी, ब्लूबेरी फ्लेवर के। ये सब मतलब इट इज वेरी, मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां ट्रू। लोग। दिस इज सच ए ग्रेट थिंग। ये तो मैं खुद रहते हुए ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आई थिंक हमारा जो एरिया है वो मेरा ख्याल बहुत वेल मैनेज्ड है। हमारे यहाँ लोगों को इतना फोर्स शायद जैसे तमाम जगहों पे या तमाम लोकेलिटीज में करना पड़ा है, that to restrain जी and to जी guide, जी। we have that राइट। amount of challenge. Our challenges were limited, but yes, there were many हाँ challenges. But to win hearts at a place where the challenges are less and people are more educated, you know, वो बहुत हाँ। सेरेब्रल जैसा आपने अभी कहा, तो ये कैसा कैसा रहा? क्या शुरू से ही सौरभ बनना चाहते थे एक लीडर या फिर कुछ और सपने थे? नहीं नहीं, मैं तो मुझे लगता है मैं कभी स्कूल कॉलेज में क्लास मॉनिटर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, ना कभी मैं क्लास मॉनिटर बना अपनी क्लास के अंदर। हाँ। कोई ऐसी खास लीडरशिप क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं थी कभी भी, जो नहीं कभी नहीं, कोई दैट कहे डजंट। चाहे कोई ऐसा कहे कि भाई पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इस तरह का कुछ नहीं था। हाँ। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मेरे को मौका मिला हम्म। यहाँ का इलेक्शन लड़ने का। और देखिए, इट इज अ वेरी, आप देखिए अच्छे अच्छे इंजीनियर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ट्रू। इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, बड़े ट्रू। इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। ट्रू। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब दे हैव अटेन्ड सो मच इन देयर लाइव्स, मतलब वो हर अपने एक क्षेत्र में किसी एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं। और मैं, मेरा काम ये है कि उन सब लोगों को दिल्ली की असेंबली में रिप्रेजेंट करना। तो मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ, बट मैं उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। So does और that make you the आम आदमी of the? हाँ, तो मुझे लगता है कि एक लीडर के लिए ज्यादा जरूरी ये तो है कि वो बोले और अपनी बात रखे, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि वो सुने। आप जब सबको सुनेंगे, चाहे आप उनकी मदद ना कर सकें, बट अगर आप सबको सुन रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ रहा है, बुजुर्ग की क्या प्रॉब्लम है, हाउस वाइफ की क्या प्रॉब्लम है, जवान बच्चे जो हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, True. टीनेजर्स क्या चाहते हैं, तो
आप अगर उनकी बात सुनेंगे तो आप उसकी बात को प्लेटफॉर्म्स पे रख सकते हैं, चाहे आप विधानसभा हो, मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हो, आप उनकी बात को रख सकते हैं। और यही हमारा काम है। वी आई डोंट हैव टू रिप्रेजेंट सौरभ भारद्वाज, यू नो, आई हैव टू True. रिप्रेजेंट माय कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ना रिप्रेजेंट करने लगे विधानसभा में। कई बार ऐसा हाँ. होता है कि जो मेरी सोच होती है वो अलग होती है, मगर मेरी True. विधानसभा की सोच जो होती है वो अलग होती है। तो आई कॉन्शियसली ट्राई कि मैं अपनी सोच को ना थोपूं, मैं मेरे लोगों की जो सोच है उसको जाके वहां रखूं। और वो आप करते हैं तो अच्छा लगता है। और देखिए बड़ी बात ये है कि क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ग्रेटर कैलाश में, तो देखिए मेरे को 3 इलेक्शन में लड़ा, 3 इलेक्शन में जीता हूँ यहाँ से। मेरे को हाँ. कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को किसी को शराब बांटनी पड़ी हो, किसी को पैसे नहीं बांटने नहीं, पड़े हों। कभी नहीं, ये तो और आई कैन कोई वाउच, हमारे कोई यहाँ तो कभी हाँ, तो नहीं। इतनी अच्छी सैडेस्ट बात है। पार्ट इज, एक चीज बताऊं मैं, एक शिकायत है, आम आदमी पार्टी ने अगर बांटे हैं तो सिर्फ पर्चे बांटे कि हमने कितना अचीव किया है इतने टाइम पीरियड में, ना कभी कोई वोट मांगने भी आया। और आई थिंक बिना आए ही आप लोग जीत गए, बिकॉज द वर्क स्पोक, दैट वाज समथिंग, यू नो। आई वाज हाँ थिंकिंग कि जब हम छोटे थे, जब इलेक्शंस होते थे तो लोग घर आते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ कितने लोग आएंगे, नो टू से, यू नो, हाउ मेनी पीपल हैव टर्न्ड अप। आम आदमी पार्टी जस्ट सेंट, यू नो, दिस इज द चिट्ठा व्हाट वी हैव डन थ्रू आउट एंड हियर यू गो। एंड आई थिंक इट वेंट, हाँ। एक वन साइडेड ही था, जो भी था, वन साइडेड ही। एक्चुअली देखिए क्या हुआ, सोशल मीडिया आने के बाद जो है कुछ मामलों में पॉलिटिशियंस के काम बढ़े हैं और ट्रू. कुछ मामलों में आसान हुए हैं। अब आसान इस हाँ. तरह हुए हैं कि लोग 5 साल अपडेटेड रहते हैं कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेरी आपको ट्रू. बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि 5 साल में क्या हुआ। पहले क्या है, ऐसे कोई माध्यम नहीं थे। और लोग एमएलए की शक्लें भी कम जानते थे, क्योंकि हाँ. आप उनकी शक्लें सिर्फ पोस्टरों पे देखेंगे जब पोस्टर हाँ. लगेंगे, या वो आपको अगर कभी मिले हैं तो आप उनको देख पाएंगे। बट सोशल मीडिया से आपको अपनी तस्वीर, आपको अपनी वीडियोस पहुंचाना इतना आसान हो गया है दैट ट्रू. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये भी है कि आपके पास प्रॉब्लम्स आती भी ज्यादा है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो एमएलए तक पहुंच पाएगा उसकी प्रॉब्लम आ पाएगी। बट अब लोग ट्वीट हाँ. कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो इट्स भेज सकते इजियर. हैं। हाँ, तो हाँ. मतलब सोशल मीडिया को अगर आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो इसने दुनिया को काफी नजदीक लाए हैं। जैसे देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि कोरोना के जमाने में जब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता 7 बजे के बाद, बट सब लोग घर में बैठे, मतलब कि वी कैन शेयर आवर आइडियाज। True, true. So I had posted your, you know, this promo before, and I had a lot of questions from people. So my bua from New York had asked one question, which as a priority I will take because it's family. Sorry, audience. So नो उन्होंने प्रॉब्लम, पूछा वो तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। is because she is the Delhi. I too came to Delhi later, but she's literally born and brought up. So she says, is Delhi going to be cleaner and greener? Because as compared to what we are aiming is international standards in many, many ways, in terms of health, in terms of Yes. education. But what about the clean and green Delhi? Yes. In this election manifesto, before we were, running for elections, we declared that though, like for last 5 years, we have been maintaining that cleaning Delhi is under the domain of MCDs, but we have realized that even though it is under the domain of MCD, it is a Delhi government which gets a bad name, and it's a Delhi in general. People of Delhi Yeah. who get a bad name if Delhi is not clean. So we had decided and we had promised in our manifesto that this time, like this tenure, we couldn't find time to, streamline administrative processes with respect to MCDs. Once this Corona thing is it gets subsided, then we'll pick up, cleaning Delhi in the Yeah. hands of the government. So we'll not leave it just on MCD. We'll try to provide all the help and probably some kind of an administrative control over MCD, so that cleanliness and greening, ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। आप जितना ग्रीन बनाते हैं शहर, उतना ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर लगता है। और Agree. इस कोरोना के वक्त पे वी कुड सी कि नेचर और एनवायरनमेंट, वनस्पति तो तैयार है,
बट हम ही उसको मौका नहीं दे रहे थे। तो उसको जैसे ही मौका मिलता है, दे आर रेडी टू रिक्लेम। हाँ, हवा साफ होने लग जाती है, हरियाली आने लग जाती है, पेड़ों पे इतने सुंदर फूल खिले इस बार की जो कभी देखे ही नहीं गए। यस, तो थोड़ा बिल्कुल मौका अगर बिल्कुल। दिया जाए तो करेंगे। इवन और दिल्ली सनसेट की जो है ना, आप सावित्री से आगे फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ेंगे, जो दिल्ली वाले जी हैं जी वो जी, मुझसे अग्री करेंगे, वो सनसेट इतना खूबसूरत लगता है कि कई बार लगता है वहीं पे रुक के थोड़ी देर ही सन डूबता हुआ भी देखो, राइट बहुत खूबसूरत। राइट राइट। अब देखिए धूल बिल्कुल नहीं जमी उन पे, बिल्कुल। धुआं नहीं जमा, तो इतने हरे पत्ते दिख रहे हैं जितने हरे कभी दिखे नहीं। तो कोशिश इस बार रहेगी, आप अपनी बुआ जी को बताइएगा मेरी तरफ से कि इस बार वो जब देख वो रहे हैं, न्यूयॉर्क शी से इज आएंगी, लाइव। तो इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि थोड़ी हरी और साफ दिल्ली उनको देखने थैंक को यू, मिले। थैंक यू। ये तो रही बात, हमारा विजन, मतलब आपका विजन एज पार्टी क्या है क्या नहीं इन टर्म्स ऑफ क्लेanलीनेस एंड ऑल। पर आज हम बात करेंगे, सौरभ जी, ये बताइए आप मेरे को कि सौरभ एज अ पर्सन, आर यू एन एविड रीडर? डू यू लाइक टू रीड और आर यू डोंट लाइक टू रीड, कि भाई किताबें बस पलट लिया और हो गया? नहीं, मेरे को जब मौका मिलता है तो पढ़ता हूँ। और पढ़ने का अपना फायदा है। देखिए पढ़ी हुई बात जो है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा रहती है और आप उससे सीखते हैं। फिक्शन अब नहीं पढ़ पाता, फिक्शन पहले पढ़ता था, अब नॉन फिक्शन जनरली पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं तो अभी व्हाट कुछ दिनों पहले, जी? हाँ हाँ, कुछ दिनों पहले ही मैं एक किताब खत्म की मैंने, व्हाट गॉट यू हेयर वोंट गेट यू देयर। मतलब ओह, जिन वेरी। आदतों से या जिन चीजों से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जरूरी नहीं है कि उन आदतों से आप आगे भी पहुंचे। तो प्रॉब्ली वेरी ट्रू। आपको और बड़ी अच्छी बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड थी, जिसके अंदर ये था कि टॉप मैनेजमेंट जो है, सीईओ सीटीओ और डायरेक्टर लेवल के लोग जो हैं, वो अपनी कुछ क्वालिटीज की वजह से वहां तक पहुंचते हैं, मगर उसके बाद उनको कुछ और क्वालिटीज भी अपने अंदर लानी पड़ेंगी ताकि वो और आगे जो है उससे बढ़ पाए। और ज्यादातर वो क्वालिटीज देयर सॉफ्ट स्किल्स, आपके अपने हाँ, सब। बिहेवियर की, आपके अपने चरित्र की, और आप किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और अपने आसपास के लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं अपने इन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको गुस्सा ज्यादा आता है, या आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं किसी काम के लिए, या मतलब बहुत सारे अलग अलग हाँ लोगों की हाँ। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अपने आसपास अपने सबॉर्डिनेट्स को बताएंगे कि देखो मैं ये बात जान रहा हूँ कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरी पर्सनालिटी के अंदर ये छोटी प्रॉब्लम है, और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि मेरे में फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। मतलब बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। अलग और स्ट्रेंज तरीके की बातें उसमें थी। तो अलग अलग, एक इंडिया की बुक थी, बुक इट वाज अ बायोग्राफी ऑफ इंडिया इन 70 इयर्स। ओके। पिछले 70 सालों में इंडिया कैसे बना, एक बड़ी अच्छी किताब मैंने एक बार पढ़ी थी, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। हाँ, आज। बहुत अच्छी किताब थी। उसके अंदर महाभारत के सभी अच्छा। कैरेक्टर्स को लेके एक एक कैरेक्टर के बारे में बताया कि द्रौपदी की क्या मजबूरियां थी, द्रौपदी की क्या गलतियां थी, कर्ण की क्या गलतियां थी, भीष्म की क्या क्या समस्याएं थी, उसके क्या द्वंद्व थे। तो जी, तो मौका मिलता है तो पढ़ पाते हैं, बट अभी तो खैर मौका मिला है, बट अदरवाइज अब मौका कम मिलता है पढ़ने का। ये बताइए, अब बात करिए आपने महाभारत की, तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं जितने भी वर्जन्स ऑफ महाभारत बने नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, सो आई कीप वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स रीडिंग। मैं हाँ। एक सेकंड ना कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपकी ना आवाज अच्छी आ रही थी, तो एक फोन आया उसके कारण फिर आवाज कम हो गई। अच्छा। सो आई एम हाँ हाँ, ट्राइंग यू टू, एडजस्टेड, नो वरीज। आप बताइएगा जब ठीक हो जाए, मैं कई भी बार। ना बहुत ज्यादा जो है हाँ, आ, अब ठीक ये हो यूज नहीं करता, बट मैं ना इसको स्पीकर इसका ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू। रही, आर यू बीइंग एबल टू हियर मी और नॉट? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, बट बिल्कुल वो जो ना स्पीकर वाले मोड पे नहीं है आपका फोन। क्या मैं मतलब डिस्कनेक्ट मेरा, करके दोबारा आपको करूं कनेक्ट? एक बार कर पाएंगे, मैं हाँ करूँ? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेट अस डू दैट। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज इज जॉइनिंग अस अगेन एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और अब पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देख लिया है कि मेरे को बीच में खाने पीने की आदत पड़ चुकी है। टीवी में तो मैं करती ही थी, बट अब मैं इंस्टाग्राम में भी करने लग गई हूँ। तो प्लीज bear with me. I have this habit of drinking water every 5-10 minutes, and we are waiting for Saurabh to join us.
हाँ अब ठीक हो गया। सॉरी वो हाँ, बीच में फोन आ जाता है तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कह रहे थे आप happens। महाभारत के बारे में, आप मैं कुछ कह रही थी कि बताइए। महाभारत का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सर वीडियो अटक गई। आई वाज आस्किंग यू महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है? अच्छा महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर, ये तो बड़ा बड़ा देखिए बड़ा मुश्किल है। बट मेरा हाँ, फेवरेट कैरेक्टर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये नहीं है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स उसके अंदर अच्छे थे। अश्वत्थामा वाज अ गुड कैरेक्टर, आई लाइक। भीष्म अच्छे कैरेक्टर थे। युधिष्ठिर, सॉरी, कर्ण अच्छे कर्ण। कैरेक्टर आई थे। थॉट सो। हाँ, कर्ण के अच्छा अच्छा वो था। अ, एक अभी मैंने एक सीरीज देखी उसके अंदर जो जब युधिष्ठिर आखिरी के अंदर जब स्वर्ग जाते हैं तो उनके साथ उनको उन्होंने बताया कि उनके साथ एक उनका कुत्ता था जो उनके साथ हो लिया हाँ, था। और स्वर्ग के अंदर अंत धर्मराज। में जो एंट्री हुई, हाँ हाँ हाँ, जो धर्म थे एक्चुअली, हाँ, धर्म, तो उनकी एंट्री हुई। तो मैंने कहा कि ये कुत्ता भी मतलब कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था उस पूरी की पूरी सीरीज का। विटनेस था ना वो हर एक चीज का। देखिए, हाँ राइट 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 विटनेस राइट था, राइट। he witnessed the entire Mahabharat, which is a very big thing. So Saurabh never हाँ wanted to be a leader, and so destiny made you a leader, I would say rather, कि ऐसा कुछ बना प्लान, एक एक किस्मत का फेर बना के घूम फिर के सौरभ जो है 3 बार इलेक्टेड एमएलए बने। तो कहीं ना कहीं किस्मत का तो रोल होगा ही इसमें। मुझे लगता है किस्मत का ही बड़ा रोल होता है। देखिए सब लोग अपने हिसाब से मेहनत करते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर तो ट्रू। वैसे भी बहुत ज्यादा जो है, पॉलिटिक्स हो गया, मीडिया हो गया, ये हाँ। सारी वो चीजें हैं जहाँ पे आपकी मेहनत एक छोटा सा मतलब एक हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बट ये जो मेहनत है ये तो बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग कर रहे होते हैं। उस मेहनत के कंपोनेंट के ऊपर आपकी किस्मत का कंपोनेंट जब ऐड होगा तभी आप किसी लेवल पे पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाते। तो ये तो आई एग्री। चांस है। और इसको आप किस्मत कहिए, इसको आप चांस कहिए, इसको प्रोबेबिलिटी कहिए कि आप सही वक्त पे सही जगह थे और आपको ये मौका मिल गया और आप लोग ये कर पाए। देखिए, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैं बीन इन टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपने शायद कभी, आपको पता भी नहीं होगा, मैंने प्रिडिक्शन दी थी आम आदमी पार्टी की कि 63 के आसपास सीटें आएंगी। ठीक है, मैं ओनली अच्छा थी, सबने कहा था बीजेपी की मिलके सीटें आएंगी, मैंने कहा बीजेपी की नहीं आ रही है इस बार, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल सोशली ऑल्सो, सो दे से कम तुम तो मत बोलो ऐसे। तो ये बात हुई काफी हद मगर ये तक। बहुत मुश्किल प्रिडिक्शन थी। अगर आपने हाँ, उस समय ये नहीं मेरे प्रिडिक्शन देश। की है तो इट हाँ, इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रिडिक्शन, क्योंकि जनरली लोग ये कह रहे थे, जनरली लोग ये कह रहे थे कि 40 आएंगी, 40। 42 आएंगी। हाँ और फिर जब सबने, मैंने मतलब आखिरी, मेरे पास वीडियोस है इसके। राइट, और आखिरी वक्त में लोग 35 36 भी कहने लगे थे। और मतलब ये कहने लगे थे टक्कर बराबर की हो गई है टाइप। तो आई थिंक हाँ, अगर आप प्रिडिक्शन कर पाए तो, बट वाज दैट हाँ। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी और वाज दैट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन पीपल, फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम पीपल? नो, सो यू नो, फीडबैक तो नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट का फीडबैक नहीं ले सकते हो आप। नंबर ऑफ राइट सीट का फीडबैक भी आपको हर जगह का रिपोर्टर अलग, उसका अलग, इतना मैं मेहनत नहीं कर सकती। जिसके लिए मुझे राइट। पैसा नहीं मिलता उसके लिए नहीं करती। हाँ ये मुश्किल की है। बात है। बट इट वाज मोर इंट्यूटिव देन एस्ट्रोलॉजी, इट वाज मोर इंट्यूशन। हाँ कई बार आपके, देखिए इंट्यूशन के बारे में भी कई किताबों के अंदर मतलब मैंने एक बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, टॉल टेल्स अबाउट माइंड एंड ब्रेन। ठीक है, और उसके अंदर ये लिखा था कि देखिए आप जब अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं तो आप, आपकी जिंदगी में रोज कुछ ना आपके साथ होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप गए और आपने देखा कि एक आदमी बहुत गुस्से वाला था और आपने उसको कुछ ऑफर किया और उसने आपसे कुछ किया, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया कि इस तरह से दुखने वाला आदमी, इस तरीके के गुस्से वाला आदमी इस तरीके से रिएक्ट करता है, और वो आपके दिमाग में पैटर्न की शेप में स्टोर हो जाता है। और ट्रू। आपकी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस
धीरे 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 पैटर्न्स की फॉर्म में आपके ब्रेन में सेव हो जाते हैं, और फिर आप जिस भी नई कंडीशन और सिचुएशन में जाते हैं तो आपका मन आपको कहता है कि अब ऐसा होने वाला है, या तू ऐसा कर ताकि ऐसा हो, और उसको हम इंट्यूशन मानते हैं। बट उस किताब के हिसाब से वो इंट्यूशन नहीं है, वो बेसिकली आपकी stored intelligence है, based on various patterns which you have experienced throughout your life. Brilliant, Saurabh. I never knew that you had read so much about the brain patterns and things, because I love reading all this and it has been my favorite topic. ये मुझे आइडिया नहीं था कि और मेरे को लगता है कि जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ओवर 1091 लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत क्लियरली, छोटा छोटा फिगर नहीं दिख रहा है, तो एवरीबॉडी 86 लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ, 86 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बड़े खुश होंगे ये जानते हुए कि हाँ, जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया है, जो चूज किए गए हैं, इनको इतनी अथाह नॉलेज है, बिकॉज पीपल कैन टॉक nonsense for long, but things that make sense are very short, you know. अब क्या है ना, इतनी बड़ी मार्केट है कि सब लोगों की एक सेगमेंट है। अगर आप नॉनसेंस भी हैं तो भी आपकी एक बड़ी ऑडियंस होगी जो नॉनसेंस ही सुनना चाहती है। तो अब सबको जो है कस्टमर मिल गया है। Everybody has a target audience. I know. So I had a very interesting interviews. If ever you get time, I know you've been very busy, so you could go and see. And the people I've had so far, I am very blessed and lucky that they've been with very content-driven and very intelligent and very focused. Coming to the part, tell me something. What does your routine during Corona sound like? 2 महीने से तो हम लोग लॉकडाउन में ही हैं, कैसा लग रहा है, क्या हो? देखिए कोरोना के अंदर क्या हुआ कि जब शुरू में कोरोना हुआ तो लोगों को बड़ा जोश था। कोई पोछा लगा के फोटो डाल रहा है, कोई बर्तन धोते हुए फोटो डाल रहा है, और खूब फोटो डाली, और उसके बाद फिर वो थक गए, करे यार हो गई यार फोटो जितनी डालती थी। फिर वो RWA में मैसेज आने लग गए कि मेड को अलाउ करो। हाँ, वो शौक पूरे हो गए। अच्छा, फिर क्या है कि लोग फिर देश की मैदा और सूजी के पीछे लगे, और फिर उन्होंने केक बनाए, जलेबी बनाई, गोलगप्पे बनाए, भटूरे बनाए, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे देश का आटा खत्म कर देंगे लोग। इतना फेस्टिवल, बल्कि मतलब कोरोना भी कंफ्यूज है कि ये देश वालों को क्या हो गया है। कभी ये थाली बजा रहे हैं, कभी ये दिए जला रहे हैं, कभी जलेबी बना रहे हैं। अरे आप मानेंगे नहीं, कई लोगों ने तो 7 दिन तक कॉलोनी में गायत्री मंत्र चला टाइम पे, मतलब रिपीट ऑर्डर नहीं था, इट वाज जस्ट मेंट फॉर अ डे। सो या बहुत फेस्टिवल मनाया हमने, हम थक गए, इतना फेस्टिवल नहीं मना पा रहे। अब ना लोग थक गए। अब लोगों के पास जो होना आना था वो, मतलब पीपल आर लाइक कि यार अब कोरोना हो जाए तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, बट ठीक है अब बहुत हो गया, और बोर हो गए लोग एक्चुअली। एक चीज मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रही है, 500 नंबर का जब था, मेरी वॉइस एको स्पीकर लाउड है, ब्लूटूथ से लग गया, तो 500 नंबर जब थे कोविड पेशेंट्स के, तब तो हमने लॉकडाउन मना लिया। अब 1 लाख हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर लॉजिक क्या है? मतलब मैं दिल्ली का भी हाल देख रही हूँ, तो इतने तो फैल चुके हैं, अब तो लगता है कि पता नहीं किससे मिल रहे हैं, वो पेशेंट है कि नहीं है, तो ये क्या है, ये इसके बिहाइंड लॉजिक क्या? अभी तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर करीब 80% ठीक हो जा रहे हैं और उनको सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं। तो मतलब हो सकता है, इसकी बहुत चांस है कि आपके हो, और वो कोरोना होने के बाद बिना किसी सिम्टम के वो 10-12 दिन के अंदर अपने आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और आई थिंक अगर ऐसा हो भी तो ये कि अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और यही फिलहाल तो एक तरीका है। Saurabh ji, all good things come to an end, and it's been very interesting speaking to you. But before, is there a beautiful message you want to give to the lovely audience we have tonight?
कोई अच्छा सा मैसेज हो जो आप देना चाहें अपने दर्शकों को। थैंक यू। मुझे लग रहा है थोड़ा कनेक्शन के अंदर दिक्कत है, थोड़ा सा स्लो हाँ है आज कनेक्शन, ड्यू टू सम रीजन कनेक्शन हैज सम प्रॉब्लम, इंटरनेट थोड़ा स्लो है आज। हाँ, समटाइम्स हैपेंस, हम हैपेंस। पर कोई कोई ऐसे मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी जनता को, जो लोग हमको देख रहे हैं उन्हें? देखिए, नहीं सुनाई दे रहा है। मैसेज तो कोरोना से रिलेटेड ही देना ठीक रहेगा। मैं यही कहना चाहता कि था कि जो लॉकडाउन करा था हम लोगों ने, सब लोगों ने, सरकारों ने मिलके, दैट वाज अ इजी थिंग टू डू हमारे लिए। अब शुरू होता है एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, कि जब लॉकडाउन की कंडीशंस काफी ज्यादा डाइल्यूट हो रही हैं, उस वक्त हम लोग सावधान हैं कि कोरोना ना फैले, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सीनियर सिटीजन हैं और हो सकता है कि आपको कोरोना का इफेक्ट ना हो, बट सीनियर सिटीजन के लिए अपने घर के बुजुर्गों को सोच के आप ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव टू बी अवे फ्रॉम कोरोना, और जितने प्रिकॉशंस हो वो आप लें, क्योंकि मजबूरी है इस वक्त गवर्नमेंट की कि आपको इकोनॉमी को खोलना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारों के पास पैसा नहीं बचा, बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं बचा, लोगों को पैसे की तंगी आनी शुरू होने वाली है, इसलिए देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू ओपन इट। बट ये खुलने के साथ हमारी सावधानियां हमको और बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज स्टिल कोरोना है, हमारे आसपास काफी कोरोना है अभी। I understand. Thank you so much, Saurabh ji, for joining us. Thank you for your valuable time, and it was fabulous speaking to you. Great and very insightful. In fact, I did not expect so much knowledge. I'm sorry to say. Thank you so much, and have a great evening. Namaste. थैंक यू सो मच, थैंक यू। So Saurabh ji has left, and tomorrow we are again trying to rope in Shilpa Shirodkar ji, who will be with us, and we will see what we can do. क्योंकि उनका आज हमने दोपहर में टेस्ट किया था, लाइव नहीं गया था शिल्पा शिरोडकर का इंटरव्यू, तो अब हम जो है शिल्पा जी का जूम इंटरव्यू लेकर डालेंगे. She is my most favorite actress, and thank you so much people for this unadulterated love. Thank you so much, and have a superb day. गुड बाय, नमस्ते. मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लॉग इन करें. थैंक यू एंड बाय बाय. हाउ डू आई एंड दिस हियर?